So, welcome to the students for my next lecture of this topic, that the torsion in the circular shaft. In this topic, we will study the different arrangement of the shafts, means how these shafts are placed, different type of the arrangements. First arrangement which I am taking here, that is the shaft in series. This is also called the step up shafts. Shaft in series means when the different type of the shaft, or you can say that the different diameter of the shaft, when they are connected in series, so that is called the step up shaft. You understand? So this is my first, you can say, topic का जो मेरा first heading है which we will discuss, that is the shaft in series. So this is the diagram which I have shown here. Different types of the shaft AB, BC and CD. These three are the different shaft, and you have seen here that the diameter of these shaft is different also. So they are connected in series, and D of the shaft, that is fixed. You understand? जो shaft D का जो end है, that is fixed. This is your free end A. Now, just see it's working here. We have applied the twisting moment at the free end here. So when we have applied the twisting moment at free end here, and we need to find the total twist of this complete shaft. हमें क्या find out करना है? When we will apply the twisting moment here, we need to find the total twist of the shaft. कि इसमें कितना twisting होगा, and twist तो आपको पता है that we किसके साथ हम कहते हैं एंगल थीटा. थीटा is the twisting angle. So we have to find the total twist in the complete shaft. You understand? Or you can say we have to find the twisting of this cross section with respect to this cross section D, because you have seen here this cross section D is fixed. You understand that? So total twist we have to find out in the complete shaft. So means we have to find angle theta A. So what is your theta A? We need to find the complete twist in the shaft. So theta A, you can say this is theta A D, right? Theta A D, that is your theta A. This is the total twist in the shaft. Theta A, this is equal to theta AD. Because this end of the shaft, that is fixed. तो जो जहाँ पे जो ट्विस्टिंग होगा इसका थीटा ए, दिस इज इक्वल टू थीटा डी, राइट? तो मीन्स आपका जो थीटा ए होगा, दिस इज इक्वल टू आपका थीटा डी होगा. थीटा ए, this is equal to theta D. And this twisting of the complete shaft we need to find. Means you can say that the cross section of the shaft, this A, with respect to the cross section of the shaft D. Or you can say that we need to find ये जो आपका एंगल थीटा A है, what is theta A? Theta A means angle from A to D, राइट? तो हमारा एंगल जो है वो A से लेके D तक जो एंगल होगा, दिस इज यू कैन से थीटा A, राइट? एंड D इज फिक्स्ड. और D आपका क्या है, ये पॉइंट लिख लीजिए, D इज फिक्स्ड. You understand this thing? This we have to find out. Now the question is, theta A is equal to theta D. So or you can say
थीटा ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा ए मीन्स दिस इज इक्वल टू थीटा ए इज इक्वल टू थीटा डी। तो थीटा डी आपका क्या होगा? व्हाट इज योर थीटा डी? थीटा डी, दिस इज थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी, राइट। तो ये आपका जो कंप्लीट होगा, दिस इज द कंप्लीट ट्विस्ट ऑफ द shaft from A to D. You understand this? हमें ये बात फाइंड आउट करना है, थीटा ए वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखिए, वाई वी हैव टेकन थीटा ए फ्रॉम दिस पॉइंट थीटा डी, फ्रॉम पॉइंट डी, ए से हमें डी में क्यों वी हैव टू फाइंड आउट? बिकॉज डी इज ए फिक्स एंगल, डी इज द फिक्स्ड, डी आपका जो है वो क्या है? फिक्स है। ये वाला शाफ्ट आपका सी डी जो आपका है दैट इज फिक्स्ड, एंड वी हैव टू कैलकुलेट, व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल, वी मस्ट कैलकुलेट द एंगल फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। यू अंडरस्टैंड दिस? हमें फिक्स एंड से कैलकुलेट करना है। तो इसी तरीके से क्या हम ये थीटा ए जो था, अंडरस्टैंड दिस, थीटा ए, क्या मैं इसको थीटा ए बी से कैलकुलेट कर सकता था? कैन आई कैलकुलेट theta A, theta AB? Just understand, we cannot calculate the angle theta A as theta AB. Reason that this shaft, this is also rotating, this shaft is rotating, theta A जहाँ पे angle जो है एक बार, this shaft A, this is rotating, and the shaft B that is also rotating. You understand? So we cannot calculate the complete angle of the twist. हम complete angle जो twist का है we cannot calculate because both the shafts are rotating. This shaft is rotating and this shaft is rotating. So we cannot calculate the angle. You understand? We can calculate the angle only, ये point आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर आपका एक एंड जो आपका एंड फिक्स होगा, उस एंड से आप एंगल को कैलकुलेट करेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? तो जैसे आपने थीटा ए को मीन्स टोटल ट्विस्टिंग, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट ए के ऊपर वी आर अप्लाइंग हियर, तो जो थीटा ए है क्योंकि ये कितना ट्विस्ट होगा, कंप्लीट ट्विस्टिंग कितनी है शाफ्ट में, ये जो आपकी कंप्लीट ट्विस्टिंग होगी वो आपकी फिक्स एंड से वी हैव टू टेक। हमें कहाँ से लेना है? वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द फिक्स एंड। So you can say that theta A is equal to theta D, right? Theta A किसके बराबर है? Theta D के बराबर है, and theta D अगर हमें फाइंड आउट करना है तो theta D this is equal to theta AB plus theta BC plus theta CD. You understand this? This is a very important condition in case of the shaft in series. We have to find the angle of twist in the shaft series. When the shaft in series, we have to find the complete, you can say complete angle in the shaft. So this is the equation, this is the equation we used to find the angle here. You understand this? Now, understand this point. Of theta AB and theta AC, we have to find out how we can find out this one. As you know this equation, as we know this equation, ये आपने जब इक्वेशन को ड्राइव किया था तो उसमें दिस इज द वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन दैट इज टी अपॉन जे, दिस इज इक्वल टू जी इंटू थीटा अपॉन एल, राइट? सो थीटा जहाँ से क्या होगा, व्हाट इज योर थीटा हियर, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू
T into L upon G into J. You understand? So theta is equal to T into L G upon J. This is the torsional equations जो हमने पढ़ा था, derive किया था. This is the one part of the equation, and from here we can calculate the angle theta here. So just see here, this is your equation. यही equation लिखेंगे हम. जैसे मैंने आपको बताया, थीटा डी किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू थीटा ए प्लस ए बी थीटा बी सी प्लस थीटा सी. यू अंडरस्टैंड? थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी. So as I told you that theta d is equal to, जहाँ से आपने लिखा था theta d, a is equal to theta d, because this end is fixed end, तो theta a theta d के बराबर होगा. So you can say that theta a, this is equal to theta a b plus theta b c right, plus theta c. You understand this? As this end is fixed, तो थीटा डी तो आपका जीरो होगा जहाँ पे, इसलिए आपका थीटा ए जो है आप थीटा डी यू कैन से. सो नाउ थीटा ए वी हैव टू फाइंड आउट. व्हाट इज योर थीटा ए बी? वी विल राइट दिस टी इंटू एल G into J upon AB. You understand? Plus, that is T into L G upon J BC plus T into L G upon J. This is C. You understand? तो L तो हो गया ये लेंथ आपका जहाँ से. So length of each shaft is given in the problem. जो भी आपका प्रॉब्लम होगा तो लेंथ आपका जहाँ पे, तो सपोज मैं सेम लेंथ ले रहा हूँ एल एल एंड एल, राइट. जी, दैट इज योर मटेरियल प्रॉपर्टी, दिस वैल्यू इज गिवन. जे, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट यू कैन कैलकुलेट. J कैसे हो जाएगा आपका? J इज इक्वल टू पाई बाई 32 इंटू डी रेज टू पावर 4. तो डायमीटर ऑफ ईच एंड एवरी शाफ्ट इज गिवन. डायमीटर आपका क्या है वो दिया होगा, गिवन है. तो जहाँ से आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू कैन कैलकुलेट. यू अंडरस्टैंड दिस? लेंथ ऑफ द शाफ्ट दैट इज गिवन, दैट यू कैन. एंड G इज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी. ये आपको गिवन होगा. सपोज इफ यू विल गेट द न्यूमेरिकल ऑफ दिस शाफ्ट इन सीरीज, तो इफ दे आर हैविंग द डिफरेंट मटेरियल, तो वैल्यू ऑफ G इज गिवन टू यू. G की जो वैल्यू होगी वो आपको दिया होगा. अब देखिए ये जो इसमें एक मेन चीज़ है T इंटू ए बी. अब हमें क्या है? टॉर्क इन ए बी, that is torque between A and B, torque between B and C, and torque between C and D. You understand? ये आपका TAB है. What is this? TAB. तो हमें we have to find, this is called the internal torque. You understand? This is called the internal torque.
ये हमें फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करना है, दिस आई विल टेल यू, बिकॉज इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग दैट कि इनके ऊपर जो टार्क है दैट इज सेम। ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया यहाँ पे, दिस आई एम अज्यूमिंग दैट टार्क इज सेम। If we are having the torque different type, different torques are acting on the different part of this, ये जो आपके different part हैं shaft के, उन पे जो torque आपका different है, and if we have to calculate the internal torque, then how we will calculate? Likewise this ये आपका होगा T BC and this is your TCD, right? So these values are the torque and these are called the internal torque. This ये आपकी क्या है, internal। तो if there is only one torque, अगर आपका एक ही torque है, so as you are having, ये लिख लो conditions, only one torque is acting on the shafts in series। अगर आपका सिर्फ एक टार्क है जो एक्ट करेगा, तो आप कह सकते हैं टार्क इन ए वी, दैट इज इंटरनल टार्क ए वी, टार्क इन बी सी एंड टार्क इन सी डी आर सेम। तब आपका टी ए बी, टी बी सी एंड टी सी डी क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, इफ देर इज ओनली वन टार्क ऑन द शाफ्ट। बट इफ वी आर हैविंग the different torque are acting on the shaft, you understand? अगर different टार्क हैं शाफ्ट के ऊपर, तो उस वक्त क्या होगा, सपोज इसको so these are shaft, they are connected in series. I am assuming here the diameter is same, मैं इसका same diameter assume कर रहा हूँ। So these torques are, they are connected in series। Let us say this is A के ऊपर टार्क आपका है जहाँ तक, दिस इज योर B, ये पॉइंट है B एंड दिस पॉइंट इज C, राइट। A के ऊपर टार्क है B, C एंड D। इसमें you understand? से क्लॉकवाइज कर लो, दिस इज क्लॉकवाइज, राइट। जहाँ पे आप कर लो दिस इज योर 100, जहाँ पे 40 है, जहाँ पे आपका इस पॉइंट पे 70 एंड दिस इज 130, यू अंडरस्टैंड? ये न्यूटन मीटर में है या न्यूटन mm में होगा। सो हियर यू हैव सीन दैट वी आर हैविंग द mm कर लीजिए,
shaft in series. Here I have taken the same diameter, and different torques are acting at point A. This is point A, B, C, and D. So you can say it means that these are the three shaft here, from A to B, that is AB, BC, and CD. And these are connected like this. You understand? ये मैंने क्यों why? Because उस केस में जो first case we have taken here, in that case we assume that we are having the same type of the torque is acting on the shaft. So in that case, torque in AB, that is equal to torque in BC, and that is equal to torque in CD. But now this is the different condition when we are having the different type of the torques are acting on each shaft. You understand? जैसे ये शाफ्ट आपका है जहाँ पे 100 न्यूटन मीटर है, ये शाफ्ट आपका BC अगर जो शाफ्ट है इसमें आपका टॉर्क कितना है, 40 न्यूटन मीटर है. इस पॉइंट A के ऊपर इतना है, B के ऊपर इतना है, C के ऊपर शाफ्ट इज 70 न्यूटन मीटर, न्यूटन mm. Right? That is Newton mm. So this is the condition of the torque. Now we have to find, suppose this is the shaft in series and these different types of the torques here, and we have to find the complete angle, that is the angle of twist of this complete shaft, that is theta A we have to find out. So theta A क्या है? This end is fixed here. So theta A, this is you can say up to theta D, or theta A is equal to theta AD. Theta A, this is equal to theta AD, and theta AD is equal to theta AB plus theta BC plus theta CD. You understand? But the problem is, जो internal torque है, we have to find out. जहाँ पे तो 100 torque है, and this is 40. आप ये नहीं कह सकते कि TAB is 100 न्यूटन है and BC is 40 न्यूटन, ये आपका 70 न्यूटन and this one like this. No. So we have to find the internal torque. अब this is a very important point to understand कि how we will calculate the internal torques. ये जो मैंने आपको दिया, तो हम internal torque को कैसे calculate करते हैं. You understand? Let us say that I want to find the torque in AB, right? तो टॉर्क इन AB मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, राइट? व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कैलकुलेट द टॉर्क इन AB, दैट इज टॉर्क बिटवीन A एंड B. A और B के बीच में टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है. व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द सेक्शन हियर. हम क्या करेंगे, AB में एक सेक्शन आप ले लीजिए. यू अंडरस्टैंड दिस? यू कैलकुलेट, यू टेक द सेक्शन in AB, right? जो सेक्शन का दिस वन, दिस इज योर लेफ्ट साइड, एंड सेक्शन के जो इधर वाला है दिस इज योर राइट साइड. यू अंडरस्टैंड? ये आपका लेफ्ट साइड, इसको थीटा AD कर लीजिए. दिस इज थीटा D, थीटा AD. Right? So we have to find that angle, we have to find the torque in AB. Either you start it from the left side or you start it from the right side. Here in this case first मैं चेक करूँगा टॉर्क AB निकालने के लिए लेफ्ट साइड से भी, then I will check the torque from the right side. अब देखो वो कैसे, how we can do it. अगर हम लेफ्ट साइड लेते हैं, just see here from left side of
द सेक्शन, जो सेक्शन मैंने आई हैव टेकन इन ए बी, तो लेफ्ट साइड द सेक्शन अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, ये देखिए टी ए बी, दिस इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में देखिए कितना टार्क है यहाँ पे, सिर्फ 100 न्यूटन, ओनली वन टार्क इज देयर। यू फॉरगेट अबाउट दीज टार्क्स, जो सेक्शन के राइट साइड के ऊपर टार्क है, वी फॉरगेट अबाउट दैट, वी विल नॉट कंसिडर दीज टार्क्स देयर, ओनली वी जस्ट कंसिडर द टार्क्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में कितना है जी, 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन मीटर mm। अब नाउ द पॉइंट कम्स टू अ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट दिस आई एम इन दिस केस आई विल से दैट एंटी क्लॉकवाइज I am taking positive here and clockwise I am taking negative here, you understand। एंटी क्लॉकवाइज को मैं कंसिडर क्या करूंगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को मैं कंसिडर क्या करूंगा, क्लॉकवाइज को कंसिडर क्या करूंगा, नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड। तो मैंने ये सेक्शन लिया, इससे निकाल लिया आपने कितना, दैट इज प्लस 100 न्यूटन, you understand। This is from the left side of the section. If the same thing I have to calculate from the right side of the section, अगर मैंने सेम चीज़ आपकी सेक्शन के राइट साइड के मैं कैलकुलेट करनी है, टी ए बी को हमने कैलकुलेट करना है, बट वी आर कैलकुलेटिंग द टार्क बिटवीन ए एंड बी, दैट इज टी ए बी, राइट। सो लेफ्ट साइड में वी हैव कैलकुलेटेड टार्क इज 100 न्यूटन mm। नाउ कम टू द राइट साइड। अब सेक्शन के राइट साइड में आप जितने टार्क्स हैं वो ले लीजिए, और जो लेफ्ट साइड वाला ये टार्क है इसको नहीं लेना अपना, यू अंडरस्टैंड दिस, यू लीव दिस टार्क, वी डोंट हैव टू टेक द टार्क हियर। तो अगर फ्रॉम राइट साइड में करता हूँ, ये था फ्रॉम लेफ्ट साइड, दूसरा आ गया फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम राइट साइड ऑफ द सेक्शन लिख लो, you understand, from the right side of the section, anti-clockwise I am taking positive and clockwise I am taking negative, you understand। only we consider the torque which are right side to this section, we will not take or consider the torque which is left side of the section, because we are calculating the torque AB from the right side of the section। अब देखिए, this torque is clockwise, anti-clockwise, this torque is, ये क्या है, ये clockwise है, right। so this is minus 40, right। सो जो लेफ्ट साइड था, वी आर नॉट टेकिंग द लेफ्ट साइड नाउ, वी आर जस्ट कंसिडरिंग द राइट साइड ऑफ द सेक्शन। लेफ्ट साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दिस आई हैव टेकन पॉजिटिव। सो जो राइट साइड के ऊपर आपका क्लॉकवाइज होगा, दैट इज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड। बिकॉज अब हम राइट साइड से कर रहे हैं, तो राइट साइड में, लेफ्ट में अगर ये नेगेटिव था तो राइट में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। तो राइट में ये क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, हेयर क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, बट हेयर क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, यू अंडरस्टैंड। तो इस केस में अगर राइट साइड में करें तो क्लॉकवाइज देखिए क्या है इसमें, आप सेक्शन में इधर आ जाइए आप, ये कितना है, +40,
40. This is anti-clockwise. This is minus. This is 40 minus 70 and clockwise right में 130, right? So this is how much? 130 plus 40. 170 minus 7. This is 100 Newton mm. You understand? So you have seen here, either we calculate torque in AV from left side or from the right side, we will find the same thing. You understand this? हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा. सपोज करो अगर आपने जहाँ पे ये वाला टार्क फाइंड आउट करना है, ये सी डी. यू अंडरस्टैंड दिस? मैं कहता हूँ सी डी आप फाइंड आउट करना है. तो सी डी अगर आप लेफ़्ट साइड से फाइंड आउट करेंगे, सी डी को अगर लेफ़्ट साइड के से फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज पॉजिटिव 100, दिस इज नेगेटिव 100 माइनस 40 एंड दिस इज पॉजिटिव 70. तो ये आपका आ जाएगा. इसको मिटा देते हैं. दिस मैं कहता हूं कि ये वाली दिस वन, इफ वी हैव टू फाइंड टार्क इन सी डी, मैं सी डी की बात करता हूं, दैट इज टी सी डी. वी हैव टू कैलकुलेट टी सी डी. You understand? So what we do? Same thing we will do here. Consider the section at this. ये जो आपका शाफ्ट है सी डी के बीच में एक आप सेक्शन ले लीजिए. Either you calculate torque from the left side of the section or you calculate the torque from the right side of the section. CD, TCD में from left side से first calculate करता हूँ. From left side. You understand? क्योंकि this is very important to understand how we will calculate the internal torque. अगर आपको ये internal torque find out करना नहीं आएगा, so you cannot calculate some problems जहाँ पे आपको internal torque को use करना है. You understand here? तो internal torque ये चीज़, this is very important to understand. ये जो साइन कन्वेंशंस हैं उनको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट हम जहाँ पे क्या है कि दोनों साइड से चेक कर रहे हैं. अदरवाइज व्हाट यू डू, आप सिर्फ एक साइड से चलते जाइएगा. अगर आप एक प्रॉब्लम को एक साइड से चलेंगे तो आपका ये जो कन्फ्यूज़न है साइन कन्वेंशन में कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, वो आपको नहीं होगा. यू अंडरस्टैंड दिस? बट हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू, I am just proving this thing that either you move from the left side of the section or you calculate it from the right side of the section, ultimately the torque will come same. You understand? तो torque CD में left side से पहले करता हूँ. तो from left side देखिए, ये आपका section है. This is section. मैं इसको 3 section ले लेता हूँ suppose. तो left side इस section के ऊपर left side के जितने torque हैं, this we have to take it. तो TCD आपका आ गया TCD. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. लेफ्ट साइड में देखिए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैंने कहा कि लेफ्ट साइड में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस आई एम टेकिंग एज ए नेगेटिव. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ मच? आई थिंक दिस इज 100. राइट? सो अगर आप लेफ्ट साइड में लेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये 100 क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? एंटी क्लॉकवाइज दिस इज प्लस. हम इसके इधर जा रहे हैं. नाउ कम टू दिस. दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज माइनस 100 माइनस 40.
एंड ये कितना आ गया 100 माइनस 40 एंड दिस इज हाउ मच। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका प्लस में ले लेंगे हम प्लस 70। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेफ्ट साइड से आई एम टेकिंग, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, ये लिख लेता हूँ यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आई एम टेकिंग पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज आई एम टेकिंग नेगेटिव। यू अंडरस्टैंड, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है एंड दिस इज नेगेटिव है फ्रॉम लेफ्ट साइड। सो दिस कम 100 प्लस 70 170 एंड माइनस 40 दिस इज इक्वल टू 130 न्यूटन mm। यू अंडरस्टैंड। तो टॉर्क इन सी डी अभी जब मैंने लेफ्ट साइड से किया तो 130 न्यूटन mm। अब टॉर्क सी डी टी सी डी फ्रॉम सिम राइट साइड से करता हूं मैं, फ्रॉम राइट साइड ऑफ द सेक्शन, फ्रॉम राइट साइड ऑफ द सेक्शन। यू अंडरस्टैंड। अब देखिए दिस इज योर सेक्शन और सेक्शन में राइट साइड में सिर्फ यही है, राइट। सेक्शन में आपका राइट साइड क्या है, यही है। तो जो आपका राइट साइड होगा सेक्शन में दिस इज इक्वल टू, ये क्या है क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज राइट साइड में मैंने लिया है कौन सा पॉजिटिव। सो दिस इज 130। ये राइट साइड में भी आपका कितना आ गया, दिस इज 130 न्यूटन पर मीटर। यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द वे दैट हाउ वी कैलकुलेट द इंटरनल टॉर्क्स। हमें इंटरनल टॉर्क को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। यू अंडरस्टैंड दिस। तो इंटरनल टॉर्क को जब हम फाइंड आउट करेंगे टी ए बी कैलकुलेट कर लेंगे, टी बी सी कैलकुलेट कर लेंगे, टी सी डी कैलकुलेट करेंगे, बाकी चीज़ें आपको दिया है। लेंथ भी आपको गिवन होगा, जी की वैल्यू दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट इज गिवन, जे का वैल्यू गिवन है तो यू कैन कैलकुलेट द एंगल थीटा ए। थीटा ए मीन्स थीटा ए डी, दैट इज द कंप्लीट ट्विस्ट इन द शाफ्ट। यू अंडरस्टैंड। अब जहाँ पे जो एक थोड़ा सा मैं आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में भी बता देता हूँ कि साइन कन्वेंशंस क्या है। लिख लीजिए आप साइन कन्वेंशन। Sign convention, this is that is left right and this is again left and right. You understand?
देखिए, दिस इज इफ आई विल कंसिडर द लेफ्ट साइड, जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन में इफ यू विल कंसिडर द लेफ्ट साइड फ्रॉम द सेक्शन, तो लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन में क्या होगा, जो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, यू अंडरस्टैंड। लेफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और जहाँ से देखिए जो क्लॉकवाइज है, जहाँ से ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, राइट, जो क्लॉकवाइज है लेफ्ट, इफ आई विल टेक द लेफ्ट साइड के ऊपर फ्रॉम द सेक्शन, तो क्लॉकवाइज जो आपका जो क्लॉकवाइज है दिस इज नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड, राइट। अब आ जाइए, ये आपका जो राइट है, अगर इफ आई कंसिडर द सेक्शन लेफ्ट की बात करता हूं मैं, तो ये आपका राइट, अगर लेफ्ट से चलेंगे, ये अगर आपका पॉजिटिव है, अगर सॉरी हाँ, अगर इसमें जो इसका राइट होगा, जो लेफ्ट से चलेंगे, जो इसका राइट होगा दैट इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंड हियर द क्लॉकवाइज इज एंटी, यू कैन से एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड। तो ये लेफ्ट जैसे ये है आपका, तो मैं अगर लेफ्ट की बात करता हूँ, लेफ्ट को अगर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर मैं सेक्शन के राइट साइड में अगर लेता हूँ, और अगर सेक्शन के राइट साइड में आपका क्या होगा, राइट साइड के सेक्शन में क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बट एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव होगा, यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन एंड दिस इज बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो आप कह सकते हैं कि ये अगर आप जहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं आप, इफ आई कंसिडर फ्रॉम द लेफ्ट कर लेते हैं, फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, मैंने किया है एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, राइट। अब ले लीजिए फ्रॉम राइट ऑफ द सेक्शन, अगर सेक्शन के राइट से हम करें तो क्या होगा, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, राइट, क्लॉकवाइज क्या है, पॉजिटिव है, और एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, यू अंडरस्टैंड। So these are some sign conventions which I have taken, but it is not permanently that same sign convention everybody will use. You can use like this, anti-clockwise left side में आप positive ले लें, तो right side में definitely वो क्या होगा, वो आपका negative हो जाएगा, you understand. तो here I have just taken the sign convention like this, that anti-clockwise from the left I have taken positive, and clockwise from the left I have taken positive, you understand. So these are the sign conventions, but I think this is a bit difficult to understand, क्योंकि जब हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को निकालने की दोनों तरफ से अगर चलाने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या होगा, साइन कन्वेंशन में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो साइन कन्वेंशन में कन्फ्यूज़न होगा, तो उस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, either we start it from the left side or we can start it from the right side. अगर जो भी प्रॉब्लम है उसे आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें या राइट साइड से स्टार्ट करें, जैसे आपको बताया टार्क इज सेम इन बोथ द केसेस। आइदर यू टेक द, ये जो आपकी सेक्शन है, अगर आपने कैलकुलेट करना है ये तो लेफ्ट साइड से ही होगा, बट अगर जहाँ पे ये एक सेक्शन है और आपने ये कैलकुलेट करना है टार्क, तो आइदर यू स्टार्ट इट फ्रॉम द राइट साइड और स्टार्ट इट फ्रॉम द
लेफ्ट साइड द टॉर्क विल सेम, टॉर्क क्या आएगा आपका, सेम आएगा, जो अभी पीछे करके बताया मैंने आपको। तो जहां भी क्या करेंगे कि इफ ये जो आपका कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको ये कहाँ से राइट का पॉजिटिव है, कहाँ से नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज राइट से क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। तो आप क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम द वन साइड ओनली। अगर आप प्रॉब्लम को एक साइड से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जिस साइड से स्टार्ट करेंगे, अगर मैं आपको ये है, मैं सारी प्रॉब्लम ही आपकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूँ, वी आई एम कैलकुलेटिंग एवरीथिंग इट फ्रॉम लेफ्ट साइड, मैं राइट साइड को टच ही नहीं करता। तो जब लेफ्ट साइड से करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है पॉजिटिव मैंने लिया तो क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो आपका ये जो कन्फ्यूज़न होगा कि साइन कन्वेंशन का कन्फ्यूज़न होगा लेफ्ट और राइट वाला, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड दिस। सो आइदर यू स्टार्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम द लेफ्ट साइड और यू स्टार्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम द राइट साइड, you will get the same result, we will get the same result, same value of the torque, you understand। तो इस confusion को दूर करने के लिए, to avoid this confusion, you can say that we will start the problem either from the right or from the left। तो जो टॉर्क हम पहले सपोज मैंने क्लॉकवाइज ले लिया पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज मैंने पॉजिटिव लिया तो मेरा क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो आपका कन्फ्यूज़न है लेफ्ट और राइट का, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज़ अबाउट साइन कन्वेंशन, ये साइन कन्वेंशंस के बारे में था। एंड दिस इज़ द शाफ्ट इन सीरीज़। शाफ्ट इन सीरीज़ में क्या है, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द शाफ्ट, अगर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट शाफ्ट में निकालना है तो एंगल ऑफ ट्विस्ट कहाँ से निकलेगा, द अदर पार्ट ऑफ द शाफ्ट दैट शुड बी फिक्स्ड। जो अदर पार्ट होगा शाफ्ट का वो फिक्स होना चाहिए। सपोज मैं कहता हूं कि मैं एंगल थीटा बी निकालना है, एंगल थीटा बी, राइट, जहां पे एंगल क्या होगा, थीटा बी। तो थीटा बी अगर आपको निकालना है तो ये होगा थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी, बिकॉज फ्रॉम दिस ये जो आपका डी है, डी पॉइंट इज फिक्स्ड हियर, तो आपका जो थीटा बी होगा दिस इज इक्वल टू थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी, यू अंडरस्टैंड दिस। हमें this part we will not take this part theta a because theta is also rotating, theta b is also rotating, so we cannot take this part। थीटा भी निकालना है, भी कोई भी आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर इफ वी वांट टू फाइंड द एंगल, ट्विस्टिंग एंगल आपने निकालना तो दैट शुड बी फ्रॉम द फिक्स एंड। ये आपको याद रखना है, आपको कहाँ से एंगल मिलेगा, फिक्स एंड से। तो थीटा भी अपना निकालना तो ये क्या होगा, थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी। इसी तरीके से आपका जो एंगल थीटा सी होगा, राइट, थीटा सी वो क्या होगा आपका, थीटा सी निकालना, दैट इज द एंगल थीटा सी डी, यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपका एंगल आपका निकलेगा, यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो इन द शाफ्ट इन सीरीज बट वी कैलकुलेट, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी कैलकुलेट द twisting in the complete shaft। Okay, when we will apply the torque on the free end of the shaft and other end, you can say that is fixed। Different type of the shafts, they are connected in series. One end of that shaft is fixed and the other end of the other shaft that is free, and we are applying the twisting moment at this point A, so that definitely there will be the complete twisting in the shaft। But we are applying the moment on this point A, so twisting doesn't mean that is theta A। जो एंगल आपका थीटा ए के ऊपर होगा जहाँ पे आपने टॉर्क अप्लाई किया, that is the complete twisting of the shaft। No, that is not the complete twisting of the shaft। complete twisting जो आपकी शाफ्ट की होगी, that is जो शाफ्ट का अदर एंड है, दैट इज द फिक्स एंड। वो कहाँ से लेंगे, जो फिक्स एंड होगा दैट इज द कंप्लीट
ट्विस्टिंग ऑन द शाफ्ट। फिक्स एंड से हम लेंगे तो ये आपका आएगा थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी। एंड दिस आई टोल्ड यू दैट थीटा ए बी दिस इज इक्वल टू टी इंटू एल divided by G into J, and that should be in AB plus likewise in BC plus likewise in CD, and we calculate the value। इसको क्लियर करने के लिए हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है वो हम करेंगे, so that you will calculate that how we calculate the internal torque। हम इंटरनल टार्क को कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को करना, क्योंकि थेटिकल तो आपको समझ आ गया जो बताया, बट जब तक चीज़ों को आप प्रैक्टिकली ना करें, उसका न्यूमेरिकल ना करें, सो आपको प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से समझ नहीं चीज़ें आएंगी। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा न्यूमेरिकल है दैट विल सी, सो दैट ये जो आपका कंसेप्ट है यहाँ पे शाफ्ट इन सीरीज, दैट हाउ वी कैलकुलेट दिस एंगल, दैट वी विल अंडरस्टैंड वेल, राइट। सो पहले हम प्रॉब्लम को लिख लेते हैं। So this is very important problem, and with this problem we will understand the shaft in series। इसका जो complete concept है इस problem से हम understand करेंगे। What is in the problem there, that the shaft is aluminum shaft is given and its diameter of the shaft that is 40 mm, you understand। तो shaft का जो diameter है this is given as 40 mm, and this shaft is loaded by the torque applied to the pulleys of the radius 500 mm diameter attached to it। So these are the pulleys A, B, C, D. These pulleys are attached on the shaft, and these pulleys are loaded by the torques that is given, loaded by the torques applied to the pulleys of the radius। Radius of the pulley is given, that is 500 mm, and ये सभी का जो है वो क्या है, सेम है। G का वैल्यू दिया है, फाइंड द रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ गियर D विथ पुली A, यू अंडरस्टैंड, और पुली D विथ पुली A, यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट, सोल्यूशन क्या है यहाँ पे, वी हैव टू कैलकुलेट द रिलेटिव एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ पुली D विथ पुली A, यू अंडरस्टैंड। हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है पुली D to pulley A, you understand, or you can say we have to calculate the angle theta AD। So you can say we have to calculate theta from A to D, you understand। तो हमें ये निकालना that is theta AD। So theta AD किसके बराबर होगा, this is theta AB plus theta BC plus theta CD, you understand। We have to find the relative angle of twist of pulley D with pulley A, you understand। तो हमें ये find out करना है एंगल theta AD, and theta AD this is equal to, that is theta AB प्लस थीटा बी सी प्लस थीटा सी डी, यू अंडरस्टैंड दिस, ये इसके बराबर होगा। नाउ थीटा ए बी क्या होता है, दैट इज जैसे मैंने आपको बताया था टी इंटू एल जी इंटू जे ए बी, यू अंडरस्टैंड, प्लस T into L G into J BC plus T into L G into J CD, right। तो थीटा AD को हमें निकालने के लिए देखिए लेंथ तो आपको गिवन है, आई थिंक दिस इज given as 2 meter, this is 3 meter, and this is 2 meter। So length is given, that is L जो तीनों का है वो given है,
So length is given, G is the material property, its value is constant for the material, क्योंकि this is made of the only one material, aluminium shaft है, तो material क्या होगा, same होगा इसमें. J, that is the polar moment of inertia, that is also same, that is 5/32 into D into 4, because the diameter of each and every pulley that is given as same, that is 500 mm diameter. तो J भी आपको मिल जाएगा, L भी मिलेगा, G भी मिलेगा, एंड बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ T. हमारे पास T की वैल्यू नहीं है. सो इट मीन्स दैट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T. तो पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ T को फाइंड आउट करेंगे. टॉर्क, फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ T. आप देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखते जाइए. तो जहाँ पे इसी के ऊपर आ जाते हैं डायग्राम के ऊपर, अदरवाइज इसका डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन वी विल डू लाइक दिस. ये अब पुली डी ले लीजिए, दिस इज योर पुली. ये ज़्यादा मैं कोई भी आपको ये समझाने के लिए, राइट. राइट, और J इसका रेडियस, राइट. तो पुली का डायमीटर दिया था इन्होंने 40 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 20, राइट. तो radius of this pulley that is given as, I think R is equal to 500. You understand? Now look here. जो आपका टॉर्क होगा, टॉर्क, अब पहली बात यह है कि दिस इज, you can see from the problem, this is 2000 न्यूटन and this is 400 न्यूटन. तो डेफिनेटली ये क्या है, पुली के ऊपर इस तरीके से, दिस इज़ द बेल्ट, ये आपका बेल्ट है, इसमें टेंशन है इस हिसाब से. तो जहाँ पे जो आपका टार्क होगा वो किस साइड के ऊपर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर होगा, बिकॉज दिस वेट इज़ मोर, दैट इज़ 2000 न्यूटन एंड दिस इज़ 400 न्यूटन. तो ये क्लॉकवाइज रोटेट, जो टार्क होगा इसके ऊपर एक्ट करेगा, दैट इज़ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और T का जो फार्मूला है, अगर टेंशन्स दिया गया है, दैट इज T1 माइनस T2 इंटू R. दिस इज द टॉर्क ऑन द पुली. यू अंडरस्टैंड? T1 इज द टेंशन ऑन वन साइड, T2 इज द टेंशन ऑन द अदर साइड, मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ द पुली, एंड दैट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पुली. यू अंडरस्टैंड? तो जहाँ पे देखिए आप, पहले इसमें आ जाइए, तो हमें इसका पहले T निकालना है. T, इसका TD कर लीजिए, राइट. इधर से शुरू करते हैं TD. तो इसमें कितना आएगा, T1 मैक्सिमम टेंशन क्या है, T1 है. तो ये मैं कर लेता हूँ 2000 माइनस 400, T2 क्या है, 400 है, एंड रेडियस है
500, राइट। सो जे आपका आ गया 8 इंटू 10⁵ न्यूटन mm, राइट। 1600 मल्टीप्लाई बाई 500, दिस इज 8 इंटू 10⁵ न्यूटन। और इसका जो डायरेक्शन होगा, से आई एम टेकिंग द डायरेक्शन क्लॉकवाइज यहाँ पे पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज आई एम टेकिंग एज ए नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड दिस। तो टी डी की वैल्यू अपना फाइंड आउट कर ली। इसी तरीके से आप टॉर्क एट सी भी कर लीजिए। सी क्या होगा, T1 क्या है, दैट इज, आप ये देखिए इसका इधर दे दिया, ये क्लॉकवाइज है और जे किस कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो टी सी दैट इज 3000 माइनस 800 इंटू 500। रेडियस तो सभी का सेम है एंड दिस इज इक्वल टू 11 into 10⁵. You understand? Why so? Yes, 11 into 10⁵. You understand this? ये आ गया इसका TC। अब जहाँ पे आप TD निकाल लीजिए, थर्ड मैं TD की वैल्यू निकाल लेता हूँ, TD DC आ गया। अब वी हैव टू कैलकुलेट TB। TB, दिस इज योर टेंशन T1 मैक्सिमम, दिस इज T2 एंड दिस इज इक्वल टू 2500 माइनस 700 इंटू 500, 18, and this come as 9:10⁵ Newton mm. You understand? So this is torque TV आ गया। इसी तरीके से आप TA को फाइंड आउट कर लें। TA, राइट। इसका डायरेक्शन क्या आएगा, इस टॉर्क का डायरेक्शन क्या आएगा, इसका क्लॉकवाइज आएगा। इसको साथ में डायरेक्शन भी देते जाओ, दिस इज क्लॉकवाइज। अब TA, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। दिस इज ये आपका T1, दिस इज T2। मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम लोड देखिए यहाँ पे, इस साइड की टेंशन कहाँ पे है, इस साइड के ऊपर। तो नेचुरली जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी उस साइड के ऊपर होगी। सो दिस इज 2000 माइनस 800 इंटू 500, राइट। और ये कितना आया, दिस इज 6 इंटू 10⁵. सो दिस इज 6 इंटू 10⁵ Newton mm. So this we have calculated the torque on A, B, C and D. We have calculated the value of the torque on A, B, C and D. इसको आप याद रखिएगा, इसको नोट कर ले भाई यहाँ पे। इसको मिटा दीजिए। TA, TB जहीं पे इस साइड के ऊपर लिख लें यहाँ पे। तो TC भी हमने निकाला था, TC कितना है, TC दैट इज 11 इंटू 10⁵ Newton mm and TD this is 8 into 10⁵, राइट। तो इसको मिटा देते हैं, बाद में लिखेंगे फार्मूला यही, राइट। तो दिस वी हैव कैलकुलेटेड TC, TA, TB, TA, TB, TC and TD. Now we have to calculate the internal torque. ये तो अभी हमें टार्क वी हैव कैलकुलेटेड, कहाँ पे कैलकुलेट किया, TA, TB, TC। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल टार्क कैलकुलेट करना है, दैट इज
टी ए बी, हमें ये कैलकुलेट करना है टी ए बी। देन हमें कैलकुलेट करना है टी बी सी, राइट, और तब हमें कैलकुलेट करना है टी सी डी, राइट। ये हमें 3 टार्क वी हैव टू कैलकुलेट, टी ए बी, टी सी डी एंड टी डी सी। This torque we have to calculate. तो इधर से स्टार्ट करें। इंटरनल टॉर्क बिटवीन सी एंड डी क्या है, दैट इज टी सी डी। ये हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल टॉर्क। जैसे आपको बताया था क्या करना है, आप जहाँ पे सेक्शन ले लीजिए, राइट, दिस इज योर सेक्शन। मैं लेफ्ट साइड से सारी चीज़ें आई विल कैलकुलेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एक साइड से। तो अगर लेफ्ट साइड में आप देखें, लेफ्ट साइड में देखें तो ये टार्क आपका कितना था, दिस टार्क, ये अभी हमने कैलकुलेट किया 8 × 10⁵ न्यूटन mm, राइट। टी डी क्या टार्क किया था कैलकुलेट, दिस वन। लेफ्ट साइड में कौन सा टार्क है, टी डी, दिस वन, राइट। एंड दिस इज क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं जहां पे पॉजिटिव, तो ये आपका आ गया देयरफॉर टी सी डी इक्वल टू 8 × 10⁵ न्यूटन m, राइट। तो पहला हमने टी सी डी निकाली है। अब हम निकालना है टी बी सी, राइट, टी बी सी या टी सी बी, जो भी निकाले, टी बी सी आप निकाल लीजिए। आप देख लीजिए टॉर्क इन बी सी, टॉर्क इन बी सी। तो टॉर्क इन बी सी निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, जहाँ पे फिर सेक्शन ले लीजिए, बी सी में एक सेक्शन ले लीजिए। मैंने कहा लेफ्ट साइड से ही सारा करेंगे, राइट, दिस इज योर सेक्शन। तो टॉर्क इन बी सी क्या आएगा, एक ये टॉर्क है, दिस इज कौन सा डायरेक्शन में, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसको पॉजिटिव ले लीजिए। सो दिस इज इक्वल टू 8 × 10⁵, right, and this is anti-clockwise. Torque in C, this is anti-clockwise and this is 11 × 10⁵, तो जाएगा माइनस। अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू -3 × 10⁵ न्यूटन mm, you understand? राइट। ऐसे ही अब आप टार्क किसमें फाइंड आउट करेंगे, ए बी में। तो ए बी में फाइंड आउट करेंगे तो जहाँ पर भी एक सेक्शन ले लीजिए, कंसिडर द सेक्शन हेयर, एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड एक ही साइड से मैं ले रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है, क्लॉकवाइज है। आप लिख लीजिए टार्क इन ए बी, द टार्क इन torque in AB. So start from the left side, that is J positive है, clockwise है, तो this is positive 8 × 5, J negative है, that is -11 × 10⁵, और J वाला जो है ये clockwise है, ये कौन सा है, TB। TB की वैल्यू ये निकालिए प्लस right. So torque in AB
that is equal to 6 into 10 raised to 5 Newton mm. You understand? तो ये वैल्यू आपने टार्क, जिसे इंटरनल टार्क कहते हैं, टार्क इन ए बी, टार्क इन बी सी एंड टार्क इन सी डी वी हैव कैलकुलेटेड. अब इसको हम इधर लिख लेते हैं, राइट. इसको तो अब जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस. तो दिस इज टी सी डी, दिस इज इक्वल टू 8 into 10 raised to 5, राइट. इसी तरीके से टी बी सी, TVC, this is minus 3 into 10 raised to 5 Newton mm, and TAB, this is 6 into 10 raised to 5. You understand? बेसिकली ये प्रॉब्लम करवाने का ये था कि हाउ वी विल कैलकुलेट द टार्क. ये प्रैक्टिकली आपको दोबारा एक इस चीज़ को हमने प्रैक्टिस किया कि हाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरनल टार्क. दिस आई टोल्ड यू, यू स्टार्ट द प्रॉब्लम आइदर फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फ्रॉम द राइट साइड. बट एक ही साइड से अगर आप प्रॉब्लम को करेंगे, चाहे वो लेफ्ट से करेंगे चाहे वो राइट से करें, तो जो टार्क आपका है वो निकालना आपके लिए ईजी हो जाएगा. जो आपकी प्रॉब्लम थी साइन कन्वेंशंस की, जो कन्फ्यूज़न था, जो प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम से हमें क्या होगा कि वी विल अवॉइड बाय दैट प्रॉब्लम. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज, यू हैव कैलकुलेटेड द टार्क. अब आगे क्या है? आगे सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है और आपको फार्मूला लगा के चीज़ें कैलकुलेट कर लेनी. सो वी हैव टू कैलकुलेट थीटा ए डी, है ना, यही था, थीटा ए डी, दैट इज टी इंटू एल right, T into L, G into J into AB, so this is TAB है, theta AD. You understand? बॉडी और दिस, ये आपका क्या काम आएगा? पुट करें अगर वैल्यू उसमें, कब कर लीजिए पुट. टी ए वी क्या है यार यहाँ पे? 6 into 10 raised to 5 into what is the length of this? 2 G. G और J की वैल्यू सेम है, तो इसको भी पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं, राइट. प्लस TBC, that is minus 3 into 10 raised to 5, and what is the length? That is 3 divided by CD, 8 into 5, and length is 2. Right?
इसमें कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी यहाँ पे। देखिए जी और जे, ये तो कॉमन है सभी के लिए, सेम होगा, इसको आप बाहर निकाल लीजिए। 10⁵, ये भी आपका कॉमन होगा, इसको भी आप बाहर निकाल लीजिए, राइट। 2 मीटर है, ये mm का 2000, एंड दिस इज राइट 3 मीटर, 2 मीटर एंड 2 मीटर। तो आपका कॉमन आ जाएगा थीटा ए डी, ये क्या आएगा 10⁵। जी की वैल्यू है 35 GPa, तो ये आपका आएगा 35 × 10⁵, राइट। एंड जे क्या है आपका π/4 × d4, π/4 × π/32 × d4। तो डायामीटर कितना दिया गया है π/32 × d4। diameter of the shaft is what? That is 40, right? So अंदर क्या आया 6 × 2000, that is 6 × 2000, ये चीज़ें कॉमन आ गई, -3 × 3000, राइट। 12 4 28 9। सो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा ए डी। आप कैलकुलेट करें और आपको थीटा ए डी की वैल्यू मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड दिस? सो थीटा ए डी जहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए इन रेडियंट्स में एंड ये। सो आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज़ क्लियर टू यू। इस प्रॉब्लम को करवाने का जो मेरा मकसद था अभी इसी के साथ, वो ये था कि हाउ वी विल यूज़ द साइन कन्वेंशंस फर्स्ट थिंग, एंड द सेकंड वन दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द इंटरनल टॉर्क। इंटरनल टॉर्क हम किस तरीके से निकालेंगे, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इंटरनल टॉर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करने होंगे तो वहाँ पे आपको इंटरनल टॉर्क निकालना है, और इंटरनल टॉर्क किस तरीके से निकालना है, साइन कन्वेंशंस को, हाउ वी हैव टू यूज़ द साइन कन्वेंशंस। और जो सिंप्लीफाइड वे आई टोल्ड यू, दैट इज़ आइदर यू स्टार्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन और फ्रॉम द राइट ऑफ द सेक्शन, बट सिर्फ ओनली वन साइड यू स्टार्ट द प्रॉब्लम. Don't start it from the left side of the section and the other thing then it is from the right side of the section. That makes you, that gets you confused. You understand? तो जहाँ पे जो easy way है कि आप जैसे ये section लिया, मैं सारी ये left side से I am calculating everything from the left side of the section. So there is no confusion in the sign conventions there. If I am taking anti-clockwise is positive, so it means that the clockwise that is positive. अगर clockwise मैंने positive लिया है तो anti-clockwise that is negative. You understand? So this is the problem, very important problem. You just simplify it and you will calculate the value of theta.
But in this problems, we have more focus on that how we will calculate the torque in between the shaft. That is called the internal torque. कि इंटरनल टॉर्क हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, दिस वी हैव लर्न फ्रॉम हियर, राइट. सो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट वी हैव टू डू. So this is another problem I have taken. एक क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं बिकॉज आज जो लेक्चर है मेरा, आई वांट टू क्लियर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग टू द इंटरनल टॉर्क. जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा, राइट. सो दिस इज़ आल्सो ए स्टेप्ड शाफ्ट. ये आपकी स्टेप्ड शाफ्ट है, दैट इज़ सब्जेक्टेड टू द टॉर्शनल मूवमेंट्स. इसके ऊपर टॉर्शन मूवमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं एट पॉइंट ए. एट ए के ऊपर टॉर्शन मूवमेंट है दैट इज़ 100 न्यूटन mm. बी के ऊपर 240 न्यूटन mm. सी के ऊपर इसी तरीके से 360 न्यूटन mm एंड डी के ऊपर 220, राइट. तो सो टॉर्शनल मूवमेंट्स आर ऑन द एट पॉइंट ए बी सी एंड डी, राइट. सो टॉर्शनल स्टिफनेस दैट इज आल्सो गिवन ऑफ ए बी. टॉर्शनल स्टिफनेस ए बी बी सी और सी डी का टॉर्शनल स्टिफनेस दिया है, दैट इज 10 न्यूटन मीटर पर रेडियन, 20 and 40. फाइंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट. सो सबसे पहले फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द टॉर्शनल रेजिस्टेंस. टॉर्शनल स्टिफनेस क्या है, व्हाट इज द टॉर्शनल स्टिफनेस. That is the torque required for So, torsional stiffness, we are discussing about this. That is the magnitude of torque required for unit angle of twist. कि कितना हमें चाहिए टार्क कि यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है, हाउ मच टार्क वी रिक्वायर फॉर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट. दिस इज द टॉर्शनल स्टिफनेस. यू हैव रेड दिस इक्वेशन T अपॉन J इज इक्वल टू G इंटू थीटा अपॉन L, राइट. देयरफॉर आपको चाहिए एंगल ऑफ ट्विस्ट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट. तो ये क्या आएगा, थीटा अपॉन एल, राइट. थीटा अपॉन एल, दिस इज इक्वल टू टी अपॉन, यू अंडरस्टैंड. सो दिस इज योर टॉर्शनल स्टिफनेस, थीटा अपॉन एल. दिस इज द टॉर्शनल स्टिफनेस, यू कैन से. So theta upon L, this is your torsional stiffness, right. And this we have to find out. सॉरी, ये आपका गलत हो गया, ये डिफॉर्मेशन निकाल दिए. ये T अपॉन थीटा टॉर्शनल स्टिफनेस होगी आपकी, दैट इज T अपॉन थीटा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट, T अपॉन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू G इंटू J अपॉन L, राइट. दिस इज योर
torsional twist, right? ये आपका क्या हो गया? ये हो गया T/J. This is your torsional stiffness. You understand? T/θ. This is torsional T/θ. This is torsional stiffness. Therefore थीटा किसके बराबर आएगा? थीटा इज टॉर्क अपॉन torsional stiffness, right? थीटा आ गया टॉर्क अपॉन torsional stiffness. So it means that we have to calculate, but we have to calculate, find the angle of twist between A and D. तो इसको तो आप याद रखिए. This is the definition of the torsional stiffness. Definition is magnitude of the torque required for unit angle of twist. This is the part of the equation जो हमने ड्राइव किया था. T/J, this is equal to G into θ/L. So T/θ, this is the torsional stiffness. T/θ क्या है? This is the torsional stiffness. This is G into J/L. But we will only take this part, that is T/θ, torsional stiffness. Therefore theta is equal to T/torsional stiffness. It means that we have to find the angle theta here in the problem. So theta find out करने के लिए अगर हमारे पास टॉर्क आपका AB, टॉर्क BC and टॉर्क CD अगर हमारे पास होगा, we will calculate torque in AB, BC and CD, and torsional stiffness का value that is given in the problem. So we can calculate the total angle theta, or you can say at angle of twist of the complete shaft. You understand? So जहाँ तक तो ये आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि ये फार्मूला हमने यूज़ किया कि कैसे आया आपका थीटा इज इक्वल टू T/torsional stiffness. दिस इज द वे, दिस इज द डेफिनेशन, और इस तरीके से ये फार्मूला आया. यू अंडरस्टैंड? सो नाउ कम टू द प्रॉब्लम. अब प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू फाइंड एंगल थीटा. तो हमें टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट वी हैव टू फाइंड आउट. सो थीटा इज इक्वल टू theta AB plus theta BC plus theta CD. You understand? So we can write it like this. Theta is equal to torsional stiffness TAB upon torsional stiffness. अभी जो हमने बताया डेफिनेशन थीटा का, टार्क अपॉन टॉर्शनल स्टिफनेस किसका? AB का. ये भी किसका है? AB का हो जाएगा, प्लस TBC, वही टॉर्शनल, इसको ऐसे लिखेंगे टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ BC प्लस CD, torsional stiffness of CD. Torsional stiffness AB, BC and CD, that is given in the problem, this one. So it means that we could require the internal torque, torque AB, torque BC and torque CD. तो निकाल लीजिए torque AB. हमें क्या निकालना है? torque AB. क्या करें यहाँ पे? You take the section here. आप एक सेक्शन ले लीजिए. यू अंडरस्टैंड? दिस इज द सेक्शन. आई विल स्टार्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट में ले रहा हूँ जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. तो आपका TAB दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 100, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सो आई विल टेक इट पॉजिटिव, दैट इज 100 Nm. राइट? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट TBC. TBC कैलकुलेट कर लीजिए. यू टेक द सेक्शन इन BC एंड अगेन फ्रॉम द लेफ्ट साइड चलें आप, तो कितना आएगा? TBC ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट से ले रहा हूँ मैं, दैट इज 100 प्लस का, ये 100 आ गया प्लस का,
एंड दिस इज क्लॉकवाइज, लेफ्ट से क्लॉकवाइज क्या है, नेगेटिव, दैट इज -240, राइट. सो दिस इज -140 न्यूटन mm, राइट. अब इसी तरीके से TCD वी हैव टू कैलकुलेट. TCD, again take the section here from left, you will take from the left. This is clockwise, anti-clockwise, this is plus ले लीजिए 100, then -240 because this is clockwise, in the from the left side we take negative, and this is again anti-clockwise, so it means that is plus 360, and this is equal to 220 न्यूटन mm. You understand? तो ये तीन वैल्यू आपने निकाली, 100 न्यूटन mm -140 न्यूटन mm and राइट. सो इसी तरीके से थीटा ए बी निकाल लीजिए आप, थीटा ए बी. तो थीटा ए बी निकालने के लिए इसको मिटा देते हैं. चलो इधर कर लेते हैं. थीटा ए बी क्या आएगा, थीटा ए बी, टॉर्क ए बी. टॉर्क ए बी क्या है, दैट इज 100, पुट कर लो, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई टॉर्शनल स्टिफनेस ए बी, व्हाट इज, दैट इज 10. तो जी आपका आ गया 10 न्यूटन mm रेडियन, राइट. So this is theta AB, this is equal to 10 रेडियन, राइट. इसी तरीके से आप निकाल लीजिए थीटा बी सी. टॉर्क इन बी सी क्या है, -140 डिवाइडेड बाई, ये कितना है, दिस इज 20, therefore थीटा बी इज इक्वल टू -7 रेडियन, राइट. एंड इसी तरीके से यू कैलकुलेट theta, this is your theta AB, this is theta BC, and this is your theta CD, AB, theta BC, and this theta CD. राइट. अब इसके बाद निकाल लीजिए आप थीटा सी डी. टी सी डी कितना है, 220 डिवाइडेड बाई, ये कितना है, हाउ मच, 40, दिस इज 5.5 रेडियन, राइट. सो देयरफॉर इसमें आप पुट कर लीजिए वैल्यू. देयरफॉर थीटा ए, थीटा दैट इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट बिटवीन ए एंड डी, दैट इज थीटा, दिस इज इक्वल टू थीटा ए बी. व्हाट इज योर थीटा ए बी, यस दिस इज 10 एंड प्लस थीटा बी सी दैट इज -7 एंड theta CD plus
15.5 minus 7, that is 8.5, right? 15.5 minus 7, and this is 8.5 radian. 8.5. This is your angle theta. You understand? ये आपका आ गया एंगल थीटा जो हमें फाइंड आउट करना था, एंड दिस इज द आंसर. You understand? So these are the two different type of the problems. इसमें जो shaft in series है, we usually find the complete angle of twist of the shaft. You understand? तो उसका जो मैंने आपको था complete आपको इसका concept clear कर दिया. इसके दो बड़े important numericals थे, वो भी we have done it. Torsional stiffness का very important definition to understand that we have also done, but unfortunately today I will not take up the shaft in parallel or composite shaft because already it has taken a lot of time. So in the next lecture we will take up composite shaft, इसके बारे में पढ़ेंगे. Then indeterminate shafts क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ उनके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स अच्छे, जिनसे हम पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकें. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये चीज़ें होंगी. राइट. सो थैंक यू वेरी मच.